السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ماجد علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک کے چاروں صوبوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 28 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1061 تک جا پہنچی۔ سندھ کے کئی شہر اور ہزاروں دیہات سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سڑکیں اور پل بہہ جانے کے باعث بلوچستان کا دیگر صوبوں سے رابطہ اب تک بحال نہیں ہو سکا۔ خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقے بھی سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ سول انتظامیہ اور پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم نے آج سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سندھ ہو یا بلوچستان، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، سیلابی پانی جہاں جہاں سے گزرا شہر، قصبے اور بستیاں اجاڑتا گیا۔ ملک بھر میں سیلاب نے مزید 28 زندگیاں نگل لیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 1061 تک جا پہنچی ہے۔ جاں بحق افراد میں 470 مرد، 210 خواتین اور 359 بچے شامل ہیں۔ این ٹی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران سب سے زیادہ سندھ میں 349 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے اب تک 248 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 242 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 168، گلگت بلتستان میں 9، جبکہ آزاد کشمیر میں 42 افراد موت کی نیند سو گئے۔ سیلاب کے باعث چاروں صوبوں میں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، جس کے باعث ملک میں اجناس کی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کی حالیہ تباہ کن صورتحال پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں تمام اتحادی سیاسی جماعتوں کے علاوہ اعلیٰ عسکری و سول حکام شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے، سیون کے نواحی گاؤں بلاول پور میں کشتی الٹ گئی۔ حادثے میں ایک بچے سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر SSP جامشورو ریسکیو ٹیم کے ساتھ حادثے کے مقام پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سکھر کے گمرہ گاؤں میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے۔ گاؤں کے 200 مکین چھت کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ خواتین اور بچوں کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مزید بتائیں گے KB شیخ۔ KB بتائیے۔ یہ حالیہ بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ کیمرہ کے سامنے ہے، کیونکہ یہاں پر گھروں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، کیونکہ سارے گھر 200 سے زائد جو گھر ہیں یہاں پر منہدم ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی سرکار کی جانب سے تو بڑے دعوے نظر آئے، مگر یہاں پر دیکھا جائے کہ پیر و یار و مدد ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، مگر ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ان کے مویشی جو نا وہ باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں، مگر مویشیوں کو بھی گھاس کے کھلانے کی تک کی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جہاں سے یہ چارہ کرتے تھے وہاں پر دیکھا جائے کہ وہاں بھی پانی موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر متاثر ہیں۔ ان سے بھی پوچھتے ہیں اما کتنے ہمارے گاؤں میں برسات اتنا نقصان کیا ہے کہ کافی گاؤں بکھر چکا ہے، برسات کی زیادہ میں آ چکا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ آئے، ورنہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ جی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں گھروں میں اتنا پانی جو کھڑا ہوا ہے، نہ کھانے پینے کی جو اشیاء پکا سکتے ہیں، یہاں پر یہ کہ جو کپڑے بھی ہیں نا انہی سے دھو کے وہیں سکھا رہے ہیں، مگر دیکھا جائے حکومت تو بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر ان کے جو متاثرین کے لیے اب تک کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ جی تو دوسری جانب کند کوٹ میں سیلاب متاثرین امداد نہ ملنے پر مشتعل ہو گئے۔ متاثرین نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔ مزید بتائیں گے نادر علی۔ نادر بتائیے۔ جی اس وقت موجود ہوں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے، جہاں پر برسات متاثرین نے ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ مظاہرین موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کی حالت، ان کا کیا کہنا ہے۔ بھائی جان آپ کی بڑی مہربانی جو کوریج کے لیے آئے رہے ہیں، آپ کا یہ چینل جو مسلسل یہاں پہ لوگوں کا کوریج کر رہا ہے، آپ خود بخوبی واقف ہو ڈسٹرکٹ کے کسی بھی ایک دیہات کے UC میں ڈپٹی کمشنر کا ٹیم نہیں گیا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، سیشن جج صاحب AC اور مختار کار کے نگرانی میں ایک ٹیم بنایا جائے، وہاں پہ لوگوں کو جا کے سروے کرے، جس کے پاس خیمے کی ضرورت ہے اس کو خیمہ دے، جس کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے۔ جی آپ نے متاثرین کی باتیں کہنا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہے اپنے من پسند آدمیوں کو جو ہے راشن اور خیمے دے رہا ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام سے انہوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو متاثرین ان کے ساتھ جو ہے نا خیمے پہنچایا جائے، تاکہ وہ اپنے سکون سے جو زندگی گزار سکے۔ جی
वज़ीर आला सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में मुराद अली शाह ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम से कटौती करने वालों को जेल में डालूंगा। मुराद अली शाह ने कहा, हम अल्लाह के सामने सर झुकाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस सूरत हाल में गरीबों के साथ जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कराची में मलीर नदी में डूबने वाली गाड़ी के ड्राइवर की लाश भी मिल गई है। ड्राइवर अब्दुल रहमान की लाश नदी के करीब झाड़ियों से मिली। 12 रोज कबल कराची से हैदराबाद जाते हुए गाड़ी मलीर नदी में बह गई थी। बदकिस्मत खानदान के 6 अफराद की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 12 रोज कबल मलीर नदी में तुगयानी आई थी। उसके बायस से एक गाड़ी जो है वो पानी के रैले में बह गई थी। गाड़ी में एक ही खानदान के 6 अफराद और एक ड्राइवर 7 अफराद जो है वो सवार थे, जिसमें एडी की रज़ाकारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और 6 अफराद की लाशों को जो है वो निकाल लिया गया था। आज 12 रोज के बाद अब्दुल रहमान नामी गाड़ी के ड्राइवर की लाश को भी जो है वो इस नदी की झाड़ियों से जो है वो निकाल लिया गया है, जिसके बाद पुलिस हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि ड्राइवर को जो है वो निकालने के बाद इसके घर वालों को हैदराबाद में जो है वो इत्तला कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। न सर छुपाने के लिए शेल्टर मिला, न भूख मिटाने के लिए खाना मिल रहा है। मुतासरीन की इमदाद के लिए मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद समेत दीगर इलाकों से आए मुतासरीन सिब्बी में मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिब्बी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाबी रेलें हैं, ख़ास तौर पे जैकमाबाद में, इसके अलावा नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में जो सैलाबी रेला दाखिल हुआ है, उसके बाद लोग जो हैं अपने घर बार छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो यहाँ सिब्बी में भी बहुत से इलाकों से लोग जो आए हैं और यहाँ पर उन्होंने पनाह तो ले ली है, लेकिन ताहाल उनके पास इमदाद ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ वो झुग्गियाँ लगाकर रिहाइश तो कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की अशिया ना होने की वजह से बच्चे भूख से भिलक रहे हैं। और अगर मुखय्यर हजरात यहाँ पर लाकर खाने की कोई चीज़ें तकसीम करते हैं तो बच्चे हों या बड़े, वो फौरी तौर पर यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद छीना झपटी वाला एक सिलसिला भी नज़र आता है, जिस पर लोग नाला नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन खाने पीने की अशिया फराम नहीं की जा रही, जिससे बच्चे जो हैं अब भूख से तड़पने लगे हैं। मेरे साथ मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, यहाँ पर हमने देखा कि आपने लाकर खाना तकसीम किया है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे साहब ये लोग जैकमाबाद से आए हुए हैं, बेचारे जो है ना बहुत परेशान हैं। और सबसे पहले इनको रात को जो है ना बारिश ने बहुत ज़्यादा तंग किया, और सुबह मैं इनके लिए नाश्ता भी लेके आया हूँ और अभी दोपहर के लिए खाना भी लेके आऊँ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर मुखय्यर हजरात का यही कहना है कि लोगों को अपने घरों से निकलकर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए कि जिनके पास खाने पीने के लिए अशिया नहीं है, पैर में जूती नहीं है और तन पर कपड़े मौजूद नहीं है। जबकि अगर हुकूमत की हवाले से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत इमदाद यहाँ तक पहुँचाएगी तब तक काफ़ी देर भी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए लोगों को मैदान में आना चाहिए और ऐसे लोगों की जो है वो मदद करनी चाहिए। जी बलूचिस्तान के बाद रुख करेंगे जनूबी पंजाब का। सैलाब से जनूबी पंजाब में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सादकाबाद और रुझान के कच्चे का इलाके चक धनवानी में सैलाब ने तबाही मचा दी। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे कबीर सोलंगी। कबीर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद रुझान के दरमियान इलाका है, चक धनवानी सुनमियानी का इलाका, जहाँ पर कच्चे में जो है सैलाब यहाँ पे पहुँच चुका है। लोग जो है यहाँ से नकल मकानी भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कश्ती में जो नकल मकानी करने वाले अफराद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं ये नकल मकानी करके कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब, ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनको हम पानी से निकाल के किश्ती पे उनको वापस लेके आ रहे हैं, ये सादकाबाद रोही की तरफ। और इनके जो फसल थे कपास वो भी ख़त्म हो गया, और इनके जगह जो थे मकान थे वो भी गिर गए हैं। कई मवेशी इनके मरे हैं, कई पानी में बह गए हैं। ये अभी वो जो बच्चे हैं ना उनको महफूज जगह पे लेने के लिए लेके जा रहा हूँ ताकि इनका ज़िंदगी बच जाएगा। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन की बात सुनिए। इनका ये कहना है कि यहाँ पे सैलाब जो है ऊपर से अल्लाह की बारिश है और नीचे सैलाब का पानी है, दरमियान में दबे हुए हैं। घर जो है वो गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, जानवर जो हैं वो बह चुके हैं। और हम अपनी मदद आपके ज़रिए जो है यहाँ से नकल मकानी करके सादिकाबाद और रोही की तरफ निकल रहे हैं ताकि अपनी जान, अपने बच्चों को बचा सके।
दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। तोनसा शरीफ से लेकर डेरा गाजी खान तक हजारों बस्तियां जेर आब आ गईं। डेरा गाजी खान और कोट चुट्ठा के हजारों मवाजात जेर आब आ चुके हैं। सैलाबी रेलों के बायस 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 36 और दीवार गिरने के वाकयात में 500 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में 25 जुलाई से 25 अगस्त तक का अरसा कयामत से कम नहीं था। बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी से 345 बस्तियां जेर आब आईं। 10 लाख एकड़ से जायद रकबा जेर आब आया। सैलाब से 6,99,502 अफराद बराह रास्त मुतासर हुए। जिला भर में अब तक सैलाबी आफत के बायस 45 अफराद जान से जा चुके हैं। साल भर के लिए जखीरा शुदा गंदम समेत हजारों की तादाद में माल मवेशी भी पानी बहा ले गया। ਹੁਣ सारे बच्चे भूखे पर माल सारे दाने सारी सब बिछा लोड़ गई है। हम बच्चे चीखते पिटेंदे कई मेले रोड ते कचे बाल में गिनते ना तो पान से दे भूखे। सैलाब है ना हफ्ता थी गए कोई सदा वाली वारस को नहीं था, ना कोई नादम था, ना कोई निम्बार था, ना कोई हुकूमत था। है अच्छा अपनी इमदाद आपकी दे पाए, कोई सारी इमदाद कोई नहीं की। तकलीफ ना ले, ना सारे घर को पानी है, ना कोई खावन दिए, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं रह गया, कपड़े पावन जो नहीं रह गए, ना सारे मेम्बर है, ना से मैं बिहार इलाके जा रहे हैं, सारे इलाके कोई कह नहीं है। घर खंडर मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों ने मुश्किल से अपनी और बच्चों की जान बचाई। सैलाब मुतासरीन इस वक्त सामान इंडस हाईवे पर रखकर इमदाद के मुंतजिर हैं। कोहे सुलेमान से रास्ते बंद होने की वजह से हेलीकॉप्टर पर मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ हसनैन अहमद, GTV, डेरा गाजी खान। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर नौशहरा पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म को नौशहरा और दीगर इलाकों में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मर्दान पुल पर सैलाब की तबाहकारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि सैलाब से मुतासर होने वाले को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर नौशहरा पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अपने वीडियो पैगाम में सिपा सलार ने कहा, मुल्क में इस साल बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया है। लोगों को दोबारा बहाल करने में कई साल लग जाएंगे। तमाम मुखय्यर पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि वो मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की मदद करें। उम्मीद है ज़रूरत की इस घड़ी में दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करेंगे। हाँ, बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। अपडेट देंगे आपको। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी महाजराई का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला नौशहरा के दौरे पर हैं, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसी हवाले से चित्राल के दौरे पर हैं। ताहम दोनों हुकूमतों का आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी महाजराई का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला नौशहरा के दौरे पर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ जई से। जी इमरान, बताइएगा, सैलाब जैसे अहम और कुदरती आफत पर भी वफाक और सूबाई हुकूमतें सियासत कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सैलाब ज़दगान जो है वो मुसीबत में मुब्तला है और इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आपस में राब्ते के फुकदान के बायस सियासत भी कर रही हैं। एक तरफ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ नौशहरा के दौरे पर हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है महमूद खान वो मौजूद हैं चतराल के दौरे पर। दोनों के मकासद सेम है, यानी कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपस में राब्ते का कोई फुकदान नहीं है। इस वक्त भी जो एक सूबाई वज़ीर हैं कामरान मंगश, वो अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं नौशहरा में ही, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपस में दोनों का राब्ता इस हवाले से कोई नहीं हुआ है। आपस में दोनों का राब्ता नहीं हुआ है। इमरान यूसुफ से ब्यूरो चीफ पेशावर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स की जानिब से लाहौर के 17 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं। शहरी खुराक, अद्वियात, पीने का पानी और दीगर चीज़ें अतिया कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद गुज्जर से, जो इस वक्त फोर्ट्रेस स्टेडियम में मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्क पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा जो है इस वक्त सैलाब की जद में है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो मलिया मेट हो चुके हैं, सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। इस मौका पर कैसे मुमकिन था कि पाक फ़ौज जो है वो अपने मुतासरा भाइयों को छोड़ दे। पाक फ़ौज जो है हर बार की तरह इस बार ही हमने देखा कि सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए जो है मौका पर भी मौजूद है उन इलाकों में, जबकि मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 17 के करीब मकामात पर जो है पाक रेंजर और पाक आर्मी की जानिब से कैंप लगाए गए हैं। मेरा कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाया, आप देख सकते हैं इस वक्त ये सामान जो है इकट्ठा जो किया गया था, जो यहाँ पर कैंप था, वो उसको अब ले जाया जा रहा है और गर्म कपड़े हैं इसमें और जो ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो इस कैंप में मौजूद हैं। तो राना जैन कैमरामैन को मैं कहूँगा अगर कैंप को हम दिखाएँ तो इस वक्त कैंप में कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर मौजूद है, तो कैमरामैन अगर आपको दिखाएगा तो यहाँ पर आटा भी यहाँ पर मौजूद है, पानी यहाँ पर मौजूद है, दालें यहाँ पर मौजूद हैं, बिस्किट यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा जो अशिया जो हैं यहाँ पर, पत्ती यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मैं बताता चलूँ साथ साथ कि पाक आर्मी न सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि कोई भी ऐसा मौका आता है, कुदरती आफत आती है, कोई भी मुश्किल आती है, पाक फ़ौज ही वो अदारा है जो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर मौजूद होता है। तो पाक आर्मी की जानिब से इस वक्त जो 17 कैंप जो लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जो लगाए गए हैं, वहाँ पर शहरियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है अपना बड़ा हिस्सा डाल रही है। जी, लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेशावर वालों का जज्बा भी काबिल दीद है। शहर में लगे डोनेशन कैंप्स में बढ़ चढ़कर चंदा जमा करवाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान ताहा इस खान फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइए। बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन के साथ मदद के लिए पेशावर की शेरों का जो जज्बा है, इसार है, कुर्बानी है, वो उरूज पर है और हर कोई जो है जो डोनेशन कैंप लगे हैं तो यहाँ पर आकर अपने इस्तात के मुताबिक डोनेशन दे रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी पेशावर तमाश खान स्टेडियम में डोनेशन कैंप लगाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी, डोनेशन कैंप लगाए शहर में, जगह जगह पर डोनेशन कैंप लगे हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया का जो लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसिकली जो ज़िला इंतज़ामिया का जो डोनेशन कैंप है, इसमें एक बात ये कि अब शहर के अंदर डिफरेंट जो जगहों पर जो है वो फंड कलेक्शन हो रही है, चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ जो है ना वो हमें थोड़ी सी मशकूक नज़र आ रही है। तो इसलिए जो इसको क्रेडिबल बनाने के लिए हमने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक डोनेशन कैंप लगाए। इसमें हम कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इन काइंड चीज़ें, पानी हुई, दूध वगैरह, ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये डोनेशन कैंप लगाया गया है। उसका मकसद भी यही है कि शहर में जो बाकी जो डोनेशन कैंप लगे हैं तो उसमें से बेशतर जो फलाही तंजीमें हैं वो नॉन रजिस्टर है, मगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो ये कैंप लगाया गया है तो यहाँ पर शहरी आकर जो कपड़े हैं, खुराक है और दीगर चीज़ें जो है वो सैलाब मुतासरीन को डोनेट कर सकते हैं। जी, पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी के मामले पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.17 अरब कर्ज की मंजूरी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए मुआहिदा तौसी करने पर भी गौर किया जाएगा। IMF बोर्ड 7वें और 8वें इक्तिसादी जायजे पर गौर करेगा। पाकिस्तान ने पेश की सख्त शराइत पर भी अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। PTI रहनुमा शौकत तरीन की वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा और रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहसिन लगारी को कॉल लीक हो गई है। कॉल में शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को IMF डील पर ख़त लिखने का कह रहे हैं। कॉल के दौरान शौकत तरीन तैमूर झगड़ा को IMF डील सबूताज करने पर उकसाते रहे। तफसीलात जानते हैं हैदर शराजी से। हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, एक कॉल लीक हुई है जिसमें शौकत तरीन वहाँ तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को IMF डील से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कॉल करने का कह रहे हैं। इस मुबैना कॉल के हवाले से तफसीलात जो अभी तक पहुंची हैं, ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मशवरे के बाद शौकत तरीन ने अब दोनों रहनुमाओं से एक टेलीफोनिक गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF के हवाले से डील जो हो रही है इस पर वफाक को खत लिखा जाए और इसके अलावा बैक डोर पर IMF के साथ भी राब्ते किए जाए और इसके बदले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम अपना बयानिया आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की जानिब से इस पर पूछा गया कि ये मामला कि हम इस को अगर खत लिखेंगे तो इसकी वजह से बहुत शुक्रिया हैदर शराजी अपडेट करने के लिए।
इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा कराया जाए। समाअत 7 सितंबर को होगी। और यहाँ आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कबल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार जफर अली शाह एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे और इसके लिए मौजूदा वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी जमा कराया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस दरख्वास्त को मिसाली जुर्माने के साथ खारिज करते, मगर आप सीनियर वकील हैं इसलिए इस तरफ नहीं जा रहे। देखते रहिए GTV न्यूज़।